Right, so this lesson is about al-jumla al-ismiya. Um, Now this is the first time you guys are probably gonna see the um, sentences in Arabic. This is the first lesson of a sentence. So far you saw words, nouns in a little bit more detail, like definite, indefinite, gender, masculine, feminine, dual, plural, etc. And you also saw murakkab compounds where you have two nouns coming together, adjective varial phrase, murakkab tawsifi. But you guys did not see sentences. So when we just started the lesson about compounds, I think that was lesson 3. So at that time, you saw that compounds can be of two types, naqis and tam. Okay, this was lesson 3. Tam means complete, naqis means incomplete. Right? Complete and incomplete. Now, what we did cover in that lesson was murakkab tawsifi, which is incomplete because it doesn't convey a complete information, a complete sentence. And compound is a murakkab. So now today we're going to see a type of tam murakkab, and that's called al-jumla al-ismiya. All jumla, by the way, all jumlas or all sentences are complete compounds because they convey a full information. It could be a khabar, meaning information that this happened or this is what something is, or do this and don't do that, etc. All those are sentences which do a complete information as standalone. One of them is called al-jumla ismiya. Okay. Um, so this type of sentence is also called nominal sentence. The main feature of this type of sentence is that it starts with a noun. Starts with a noun. This sentence starts with a noun, and this noun is ma'rifa. It's a definite noun usually. There may be exceptions, but usually starts with a definite noun. Starts with a ma'rifa. This is the main actually let me not say ma'rifa. Let's just say starts with a noun because you're gonna see the exception very soon. So let's not confuse. Starts with a noun. That's the main attribute of this. The khabar. Okay, let's do this. I'll explain it. That's the main part of this. Second thing, that this has two parts usually. One is called mubtada. All these things that I'm writing are there in the lesson, but I want to make sure that you guys know because we may not be able to probably complete the full lesson reading, but I want to convey the full content. So mubtada and khabar. These are two parts. Okay, this is first part, and this is second part of the sentence. Okay, parts of the sentence. One is mubtada, the other is khabar. So mubtada in English, you can call it the subject, and the khabar you can call it the predicate. Okay, mubtada, subject is the thing that you usually convey the information about, and khabar is the information that you convey about it. Very simple example. Uh, Very simple example. Ar-rajulu sadiqun. The man
and this means truthful. The man is truthful. Okay, the man is the man is truthful. So this is a sentence. So this first part, the rajulu, is called the mubtada. The second part is called the khabar, predicate. You're conveying the information about the man, which is the subject, that man is something, that man is truthful, sadiq. So notice that first part, the mubtada, is usually definite. The second part is usually not. The second part is indefinite. Okay. हमजा भाई जी. अगर ये होता अर रजुलु अस्सादिकु तो क्या मतलब इसको और उसमें मरकब तौसीफी में फिर ये क्या फर्क कैसे? Exactly. So अगर रजुल सादिक होता तो फिर ये सेंटेंस ना होता, फिर मरकब तौसीफी ही होता. That's the main point here. الرجل और मीनिंग الصادق. में सॉरी जी जी. इससे मीनिंग किस तरह में चेंज हो रही है? So meaning, okay, let me write this first. Sorry. The man, the truthful. So you write here the truthful man. This is murakkab tawsif. So what you guys need to know is the murakkab tawsifi. Murakkab tawsifi needs to match the sifa and mawsuf, and it needs to match in all those four things. If that is true, then there is usually no other explanation except to say that that's murakkab tawsifi. So here, if you see ar-rajulu sadiqu, if you see this anywhere, you can just close your eyes and say that this is murakkab tawsifi. When you say this is murakkab tawsifi, that means it's naqis. It's not a complete sentence. It's just telling. It's a phrase. So the only way to translate it is the truthful man, or a phrase. Okay. When it is not complying, when mawsuf and sifa are not complying in the four things, one of them was definite and indefinite status, like here. Okay. In this case, you can say, okay, this is then not murakkab tawsifi. So then you look for other options, and then you can say, okay, this moves to that khabar. Okay. Usually, this is what's going to happen, that let's say 99% of the time, it's going to happen that the khabar is going to be nakira. Okay. And the mubtada is going to be ma'rifa. There's the only exception when the mubtada is not ma'rifa is when khabar is not a word, when khabar is something else, when khabar is a sentence, when khabar itself is a phrase, which is a detail. Okay. So let's do this way, that mubtada, let's go in a bit more detail here, since you guys have asked this. 2a mubtada, this is gonna be always gonna be a noun, and this is the very important point here, that this sentence, this type always starts with a noun, meaning the mubtada is always a noun. There is no other option for mubtada to be anything. Mubtada cannot be a fail, mubtada cannot be a harf, always a ism. But khabar can be an ism, can be a fail, can be harf plus something that comes with a harf. And there is something else. So let's for a simple explanation, let's say noun, or let's say a sentence. When there's a fail, then it's going to have complete sentence. That's one option. Let me get rid of this ism, fail, and harf, and tell you three options here. Khabar can be an ism, khabar can be a jumla, and khabar can be a phrase. Phrase means that it's called shibhul jumla, meaning it looks like a jumla, but it's not a jumla. It's not a complete, like let's say it's not tam. That's it. So ism, jumla, or shibhul jumla, there are all these options for a khabar to be. Okay.
So what I was saying that mubtada is always mubtada is always ma'rifa unless the khabar is shibu jumla. Or this for ease, just also say this. When khabar is an ism, then mubtada cannot be ma'rifa. Sorry, then mubtada cannot be nakira. Did you guys follow all this or no? Can you No, repeat, please? Okay, let's do this again. So there are, first of all, Jumla Ismiya has two parts. One is called Mubtada, the other is called Khabar. Okay, this and this. Mubtada is the subject, usually the thing that you give the information about. Khabar is the information itself. All right, that's all clear, right? So Mubtada can be only an ism here. There's no other thing the Mubtada can ever be. Okay, of course you can make like it doesn't have to be a one single ism. You can make an ism by like for example kitabullah are two ism so together, but they tell you one thing or one entity, right? So you treat it as an ism. So that's kitabullah is the book of Allah, and then you can make the word kitabullah as a mubtada and then say some information about that. Okay, so that's mubtada. What I mean to say when I say an ism is that it cannot be a fi'l and it cannot be a harf. Okay. Next is that khabar can be an ism, can be a jumla, and can be a shibh jumla. So when khabar can be an ism, an example is this first one. Ar-rajulu sadiqun. The man is truthful. Okay, khabar can be a jumla itself. Let's think of an example. So let's go here. Example of this was here. Example of this is going to be, for example, اليوم الجمعة أيام العيد. no, I was thinking of الذين يقيمون الصلاة. When I give examples, I tried to do something from the Quran. Okay, this is mubtada, this is khabar. Did you guys all know the translation? Yes or no? Yeah. Hmm? Yeah. What's the translation? वो जो सलाह कायम करते हैं, those who establish salah. Right. Yeah, this comes as part of a longer sentence. So, kitab, yes, al-muttaqin. Actually, I should have done it like this. हमजा भाई Sorry. जी जी. अगर हम कहते हैं अल्लज़ीना सलात हुमुल मुफ्लिहून, तो अब ये Yeah. क्या है? Is this Yes, jumla? that's also a sentence. Yes, allazina yuqimuna as-salata humul muflihun. So yes, so in that you can say that allazina yuqimuna as-salata itself, the whole thing becomes Mubtada. yes, and then hum is extra. You could merge it, or you could just say no, it's something extra. It's not part of it's mubtada and khabar. Muflihun is the khabar. Yes, but this is the other one because this is Surah Baqarah. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Let's just take الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. So this is being explained. The word muttaqeen is being explained here. Correct? Who are the muttaqeen? Is being explained over here. Muttaqeen are those which establish salah. So allazina yuqimuna salata.
All right, I think yeah, this is not an example of jumla ismiya, but this is sorry, this is not an example of a khabar being a jumla. This is an example of khabar being a shibah jumla actually. So it's very close. Let me think of another example. Let's just do an easy example. Okay, I don't need to do everything from the Quran. Zaidun yaf'alu kaza. So Zaid did something or did that. This is a sentence. Yaf'alu kaza, he did that. He did like that. And Zaid is the mubtada here. I think now this is very clear. So there are three options. Khabar can be ism, khabar can be a jumla. How is khabar an ism? When khabar is the word sadiq here. Okay. And khabar is a jumla because yaf'alu kaza itself is a jumla as well, because yaf'alu kaza means he did like that, which is a complete sentence, right? When you put Zaidun in the beginning, so you're talking, okay, Zaid did that. Zaid did like that. So that's a in addition to the khabar being a jumla, that you have an additional information, which is the mubtada, or you're connecting that additional point with the other sentence to make the whole thing a separate or a newer sentence, a bigger sentence. So what you see over here is this is one sentence, and part of this one sentence is another small sentence inside it. Khabar here in this example itself is a sentence, but mubtada khabar jointly also make a sentence, which we are talking about, which is mubtada and khabar or jumla ismiya. Okay. And third example, al-muttaqin allazina yuqimuna salata. Muttaqin are those that establish salah. Okay, those that establish salah, these are the muttaqin. So here the word muttaq starts with muttaqin here. Okay. Yeah, this example is a little complex, but for simplicity, you could just take it as is for your understanding that this is mubtada and it's a khabar after that. Actually, this is correct because I mean in the Quran, actually the word muttaqin does not become a mubtada because it's not marfu. But we will inshallah cover. We can cover this example again inshallah when we go into more detail. So let's go back. So for now, you can just understand all these three things and all these three examples that we have done, and inshallah this is good to take forward. Now let's come back. Mubtada and khabar, these are the two parts. Mubtada is always usually gonna be an ism or something, that looks like an ism, like allazina yuqim. Basically it cannot be a fail and it cannot be a harf. And the other example, one of you said, I don't know who gave that example. It's a good one. I'll put it. Allazina yuqimuna salata humul muflihun. This is also an example. In this example, mubtada is this whole phrase, and humul muflihuna is or you could just say that al muflihuna is the khabar. Here again, this is an ism. Okay, but you call the whole thing a mubtada because the information being conveyed is about the whole thing. Okay, so when I said that mubtada is always an ism, I said that it cannot be a fail, it cannot be a harf. So that's why you see allazina is not a fail, it's not a harf, right? Or this whole thing is not a fail, it's not a harf. Okay. So this is also a good example. It's a little different. Anyway, who gave this example? Hamza. Hamza Makki here. All right. So Hamza, can you hear me? Is it me? No. I can hear you. Guys, can you hear me? Yes. Makki bhai, Yes. I can hear you. Makki bhai. जी हमजा, आवाज आ रही है आपको?
जी 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 जी। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। हमजा सो ज़ादो तालिबीन जो हम कर रहे हैं गाइस एक मिनट उसमें आप शुरू की 2-3 एग्जांपल्स भी करा सकते हैं क्योंकि उसमें जुमला इसमें या खबरिया से शुरू हो रही है ना बात। ठीक है तो आई थिंक अदीन उन नसीहा और अल हया शोबा तो मिनल ईमान। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं इफ यू कैन डू दैट कि उसमें मुब्तदा क्या खबर क्या सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या रेफर कर रहे थे कि वो ज़ादो तालिबीन किस तरह स्ट्रक्चर हुई हुई है। अगर आप उसको थोड़ा सा बता दें। तो ज़्यादा तालिबीन यू कैन पढ़ रहे टेक हैं सम। सर? हाँ हाँ पढ़े हैं ना तो बट वी आर नॉट डूइंग द तरकीब अभी तक। बट आई थॉट कि अगर अभी आपने मुब्तदा खबर शुरू करा दिया तो शुरू की 2-3 हदीसें मुब्तदा खबर ही हैं तो वो मेंशन कर दो अगर अच्छा। इफ यू हैव इट ओपन जल्दी से करके दिखा दो। आई वांट टू फिनिश द लेसन। चलो ठीक है कर लो फिर कहने लगा या मैं वो साहिर भाई को करा कह दूं कि वो कवर करेंगे या तुम कवर करोगे या उसकी आई तरकीब है। थिंक वो करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ उसमें से शायद मिक्स और मैच करूंगा। वो करेंगे तो सारी कट। चलो ठीक है फिर आई थिंक यू गाइस नीड टू कोऑर्डिनेट आप और साहिर भाई कि जो जो चीजें आप कवर कर लो ताकि वो उसको फिर तरकीब में ना कराते जाएं। ठीक है ठीक है जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। ओके। ओके रोहेल यू I हैव have अ a क्वेश्चन। question. Yeah. यस व्हाट्स द क्वेश्चन? Uh, can a mubtada be a complete sentence? नो। So in this situation, alladhina yuqimuna salata, this is not a complete sentence. यस इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। Alladhina yuqimuna- That's why when I said here and I got confused in the middle, that's why I said that this is not a complete sentence. I said it's a shibu jumla here. And that's why I gave this example of Zaidun yaf'alu kaza, that this example is where khabar is a complete sentence, not the next one. What I'm struggling with is understanding how alladhina yuqimuna salata is not a murakkab tam. Okay. Allazina yuqimuna salata means those who establish salah. Okay. It doesn't tell what do those people do, what are those people, who are those people, anything. If Got you it. just Makes sense. okay, if you just say yuqimuna salat, this only is a complete sentence. When you put allazina in the beginning or something like that, it no longer is a complete sentence. हमजा भाई जी हाँ युकीमून सलाता इज कंप्लीट सेंटेंस। जी। तो इस तरह तो फिर रजुल सालिहुन भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा जो हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़े थे। हाँ नहीं होगा। मुरक्कब तौसीफी is not complete sentence. None of the मुरक्कब तौसीफी is a complete sentence. लेकिन जिस तरह युकीमून सलात तो इंफॉर्मेशन एक दे रहा है तो रजुल सालिहुन भी तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और बात खत्म हो रही है। No, rajulun salihun is saying a truthful or a pious man, right? It's not telling what does that pious man do, what did he do, or who is he, anything more than that. A truthful man, rajulun salihun, right? Let's do this. So ये जो और युकीमून allazina ओके जी जो सॉरी कंफ्यूजन युकीमून सलाह में क्या अरबी में इस तरह होता है कि लाइक नाउन भी होना चाहिए ग्रुप वर्ड में और अगर इसमें है तो नाउन क्या है युकीमून सलाह में इसे so ये आवाज कट रही काफी ज्यादा, बिल्कुल कट गई। सॉरी मैं ये पूछ रहा था युकीमून सलाह में इसम क्या होगा यानी कि उर्दू में ट्रांसलेट करें तो पता लगता है वो जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन अरबी में वो का तर्जुमा क्या वो की अरबी क्या होगा। Okay, वो is this allazina yuqimuna salata just means they establish salah. They establish salah. भाई मेरा भी इसी से एक छोटा सा सवाल है।
ये मैं सोच रहा हूँ अगर ये होता अल्लज़ीना युकीमूना और फिर अस्सलात की जगह सिर्फ सलात, तो ये क्या ये हो जाता दोज आर या विल एस्टैब्लिश, फिर ये एक फुल जुमला बन जाता है मुरक्कब नहीं तौसीफी। नहीं, no, it wouldn't have changed anything. ठीक है, तो अगर बीच में हाँ, वर्ड आए तो ये मुरक्कब ताम नहीं हो सकता। अगर अगर बीच में जिस तरह यकीमून आ गया ना, तो वरना अल्लज़ीना एक वो है, इसमें मारिफा है, और सलात सलात खाली अगर होता तो ये फिर एक वो होता खबर रुफिया फॉर्मेट हो जाता। नहीं, इवन अगर यहाँ पे सलाह होता, it would not have changed the structure, it would not have changed the meaning any, significantly. Okay. Those who establish ओके who establish one prayer or a prayer, or those who establish the action of praying, there's a little difference in the meaning, but it doesn't change the sentence structure. It doesn't change the grammatical structure. Okay. So we will, inshallah, this is actually part of the jumla failure, because I said this is a sentence, right? Yuqimuna salat, but you guys have not. How is this a sentence? And this is a more detailed, so we'll cover this again. And similarly, Allazina also will cover again. So for let's try to finish what's there in the lesson, and inshallah we can cover these complex sentences in more detail, inshallah, when we get the time. So what we've done so far, starting from beginning, Jumla Ismiya is the main topic. Jumla Ismiya always starts with a noun, and it has two parts. One is Mubtada and the other is Khabar. Mubtada is always going to be an ism. Mubtada is thing that with which the sentence starts, and that's going to be an ism. Okay, in Jumla Ismiya. And Khabar can be different things. Khabar can be an ism, Khabar can be a whole Jumla, and Khabar can even be a Shibba Jumla. Okay, Shibba Jumla means it's a phrase. It could be Murakkab Tawsifi, for example, or it could be something else. We will cover these cases in more detail, inshallah, or what are all these three later, inshallah. So let's go to the book. हमजा भाई, जी, आई एम सॉरी, बस एक बात पूछनी थी। आपने कहा कि जो जो जुमला ये जो इसमें जुमला खबरिया है, इट कैन बी इसम एज वेल, राइट? इसकी क्या एग्जांपल दी आपने? this ar-rajulu sadiqun. The ओके, word यस, sadiq is a परफेक्ट, khabar, right? यस, Yeah, and सादिक इज आल्सो इज। yeah, I'm putting a question mark here because this is not 100% true, because I don't want somebody to take a screenshot and put it. So okay, now in the book, what we will do now is that you guys have to read the lesson on your own, and I will just try to paraphrase again. We've covered most of the things. There are some things that we left. So first point in the book is just talking about what is Jumla Ismiya and what is Jumla Failiya. Okay, you can read that. Second, and we have covered what Jumla Ismiya is. That it starts with a sentence with an ism. And then second point says that it's generally marifa. The Jumla Ismiya's first part. If you guys have the book open, this is going to be very easy for you to understand. Second point says that first part of the Jumla Ismiya is generally marifa, right? This is what we said as well. And second part is usually nakira. Second part is a nakira when second part is an ism, okay? Because if second part is a jumla or a shibba jumla, we can't say that as a jumla is nakira or a jumla is shibba jumla is nakira, because this is not a property of a jumla or a shibba jumla. Nakira and marifa are properties of an ism. So when the second part, meaning the khabar, is an ism, then it's usually gonna be nakira. Okay, we covered this. Okay. Then they give a detailed information about difference between Murakkab Tawsifi and Jumla Ismiya, because you guys had that question. I think I explained that, so hopefully that will be clear. Number 3 just tells you the English translation of Mubtada and Khabar. Number 4 gives an important point. So point 4 tells that we're using a different numbering here. In our numbering, this is point number 3, which says that Mubtada and Khabar, both of these independently, are in Halatul Raf.
So halatul raf, one way, simple way to memorize this is that it ends, the word ends with dhamma, right? Pesh. This is what halatul raf means, usually. Okay, this is what you can understand for now. So if I ask you guys now, الرجل صادقين, for example, would you say that this is Jumla Ismiya? Yes or no? No. Okay, exactly. This is not Jumla Ismiya because the word Sadiqin is, you know, is not Halat Raf. And actually, if I ask you to correct this, you will correct it and make it Sadiqun. Okay, and then that will be correct. Otherwise, it doesn't make any sense. Okay, similarly, if I say Kitabullah, okay, is this Jumla Ismiya? No. No, right? Because the word Allah ends with a kasra, and so it's not usually Haratul Rafa because Haratul Rafa is indicated by a dhamma. Okay, and here, although you can also say, okay, the mubtada is usually ma'rifa, and kitab, the word kitab is not ma'rifa because there's no alif lam, right? One can argue, but however, here the word kitab is ma'rifa and the word Allah is not khabar, it's something else which makes the word kitab ma'rifa. When we did first lesson, when we did the first lesson, we did all types of the ma'rifa, and the last type of them is the seventh type of ma'rifa. So the word kitab is the seventh type of ma'rifa here. But this is not a complete sentence, so it's not Jumla Ismiya anyway. It just means the book of Allah, right? It's a phrase. All right. I think that we can stop and we can resume. Just a second. 5. Okay, points 5, 6, and 7. Yes, point 5, 6, and 7. Please go through them. Point 8 and 9 and so on, inshallah, we will cover next time. So let's end over here. Up until point number 7, we've covered them. Okay, from the lesson 6. And point 8 onwards, next lesson, next time. Okay, inshallah. So inshallah, and these, when you do these first 7 points, you will see examples, inshallah. So hopefully those things will make things clear for you as well. Okay, let's inshallah stop. Any questions? Start, could you explain again the Japanese seventh type of ma'rifa वाली चीज बताइए? Seventh type of ma'rifa wali cheez. Yes. Okay. Yes. So all I said is that the word kitab, first of all you guys need to understand the word the kitabullah is not a jumla, like, so that's out. If it's not a jumla, then it's the only option is murakkab naqis. Okay, because murakkab is what? Compound, when there are 2 or more words together. Here you are two words, but they're not a sentence, hence they are only going to be a compound or naqis murakkab. So since they are naqis murakkab, we need to find out what is this. Kitabullah, I said the word kitab is ma'rifa because it's muzaf to the word Allah, and the word Allah is ma'rifa. This was the 7th type of ma'rifa. When you look, if you want to look again, if you have the book open, you can look on page 22. We've covered this. 7th type of ma'rifa says al-muzafu ila ma'rifatin, a noun which is related to any of the above mentioned definite nouns. A noun which is related, right? They just say related. It's a special type of relationship here between the word book, kitab, and the word Allah. The word kitab means the book, and the word Allah means, Allah. So the relationship is of possession, or there can be some other explanations.
book of Allah, right? There is a relationship between the word kitab and the word Allah. Since this word kitab is related to Allah, hence in a specific way, hence we say that this is ma'rifah. Okay, the word kitab is ma'rifah. This is actually a topic of lesson number. I mean, this is a detailed topic of lesson number 11. Please check. Yes, in detail you will see this in lesson 11. Okay, you will see this in 11. If you want to go and look, you can go and look. It's very simple. Actually, this is lesson 7. Sorry, this is in 11 as well, but in 7 this is where it starts. This is the next lesson. Is that clear? Yes, Jazakallah. Okay. Inshallah, we can. Abdul Qadir is not here yet, so let's just wait for him. So I'm surprised that you guys did not have questions on the homework assignment. The homework assignment, the one that I saw, I don't remember who submitted it on Sunday. There were some mistakes. So I was thinking that you guys would have questions today. It was slightly difficult assignment. I think I have filled it. There were a few questions, but I was thinking you will mark it and return it, so I will just know my mistakes from that. Okay. So while we're waiting, pause the recording. What do you guys think about? Simran is here. Inshallah, we can actually stop. We can do the question answer and discussion inshallah next time. I've stopped my class and sharing screen. One Abdul Qadir is online. Inshallah, then you guys can continue. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुज़िश्ता हफ्ते हमने पहले मुज़ारे के बारे में पढ़ा था और उसका एक रूल हमने पढ़ा था कि ये माजी से बनता है और इसके अंदर दो तरह की तब्दीलियां आती हैं, एक इसके स्टार्टिंग में और एक इसके एंडिंग में। तो कोई बता सकता है कि शुरू में क्या चेंजेस होती हैं पहले माजी के और एंड में क्या चेंजेस होती हैं पहले माजी के? ये उस्ताद आपको बताया था कि शुरू में इलामत वगैरह होते हैं और आखिर में 3 टाइप्स के चेंजेस आते हैं। एक उसको आपसी को में बनवा सकते हैं, दो में उन्होंने जमा मुअन्नस करते हैं और साथ में उन्होंने राबी करते हैं। जज़ाकल्लाह। अलामत मुज़ारे कौन कौन सी हैं? याद ठीक है, या, ता और आइन हमजा। सॉरी हमजा। हमजा और या, ता, हमजा और नून। ठीक है। अच्छा, नून। हमजा और नून तो बहुत वाज़ेह है कि वो सिर्फ एक एक सीगे में लगते हैं। ठीक है। और या कितने सीगों में आती है और ता कितने सीगों में आती है? या 4 में आती है और ता आती है 6 में।
दो में आ गया हमजा और नून, चार में आ गया या, तो ये हो गए छः। तो पीछे कितने बच गए? 8 8 8 8। ठीक है, ठीक है, तो आठ में क्या आएगा? ता आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा देख लेते हैं जो किताब की वर्डिंग्स हैं उसके अंदर इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा स्क्रीन के साथ इशू आया हुआ है। आप लोगों में से किसी के पास का कोई इलाज हो तो बताइएगा। ये ऑटो सही रोटेशन दिख पे रही है सर बस। आपकी गई हुई स्क्रीन है। दिख रही है? हाँ सही दिख रही आ, है। सही दिख रही है? आप लोगों के पास ऑटो रोटेट तो नहीं हो रही है? बार बार मेरे पास रोटेट हो रही है स्क्रीन। आप लोगों के पास ठीक आ रही है? चलें, सही है। ठीक ठीक है। है, सही होगा। तो अब ये कोई साहब पढ़ें ज़रा इसकी इबारत, पहले मुजारे। मैं पढ़ दूँ? किसकी उर्दू अच्छी है? जी रुहेल भाई साहब। हाथ नीचे कर ले प्लीज। रुहेल साहब पढ़ को लो। हाथ नीचे करवा रहे हैं। नहीं, तो इस पे इंग्लिश होती इत्तेफाक फिर है रेल भाई सबका। को। नहीं नहीं इंग्लिश होती तो रोहिल मैं से कर लेता नीचे। पढ़वाए। नहीं नहीं, रेल आबिद भाई भाई से रोहित पढ़वाए, भाई को वैसे पढ़ने दो। मजेदार होगी। चलें, रोहिल भाई बिस्मिल्लाह रुहेल सिखाए साहब। वो। फेल मुजारे वो फेल है जिसकी किस्म का जमाना हाल या मुस्तकबिल में होना या करना समझा जाए। जैसे यस, य, यदखुलू, दाखिल हो रहा है या एक मिनट, जूम इन करने निकल, दाखिल हो रहा है या दाखिल हो रहा है या दाखिल होगा वो एक मर्द। यंसुरु, मदद कर रहा है या मदद करेगा वो एक मर्द। फायदा, इलामत मुजारे चार हैं: या, ता, हमजा, नून। इनको हरफ अतीन, ये, हाँ, अतीन और हु- हुरूफ मुजारात भी कहते हैं। हरूफ अतैना, हरूफ अतैना। अतैना और हुरूफ मुजारात भी कहते हैं। या चार जीगों के शुरू में लगती है, जो ये है: वाहिद मुदक्कर गायब, तस्निया मुदक्कर गायब, जमा यंसुरु, मुदक्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब यंसुरु, तस्निया मुज़क्कर गायब यंसुरानी, जमा मुज़क्कर गायब यंसुरूना, जमा मुअन्नस गायब यंसुरना। ठीक है, जहन में आ गए चारों? जी, आगे चलें। और जमा मुअन्नस गायब। ता आठ चीजों से शुरू में लगती हैं, जो ये है: वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीया मुअन्नस गायब, गायब और छह सीगे हाजिर के। छह से हाजिर के एक साथ आएंगे, और वाहिद मुअन्नस गायब तंसुरु, तस्निया मुअन्नस गायब तंसुरानी, और फिर उसके बाद तंसुरु तंसुरानी, तंसुरुना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। ये छह सिगे एक साथ आएंगे जिनके शुरू में ता आ रही है। जी। हमजा सर्फ वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में नहीं, लगता सिर्फ, है। सिर्फ, नून, सर्फ नहीं, सिर्फ सिर्फ है ये। सिर्फ वाहिद नून, मुतकल्लिम के शुरू में लगता है। नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम के शुरू में लगता है। ठीक है, तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा कौन सा है अगर गिरदान में देखें तो? अनसुरु। और जमा मुतकल्लिम का सीगा है ननसुरु। अनसुरु, ननसुरु। तो एक के शुरू में हमजा आ रहा है और दूसरे के शुरू में नून आ रहा है। जी, पहले मुजारे मालूम बनाने का तरीका। माजी मालूम के शुरू में अलामत मुजारे लगाकर फेल मुजारे बनाया जाता है। पांच चीजों के आखिर में जुम्मा आता है। वो पांच जम्मा। चीजें ये हैं: नंबर वन, जम्मा। वाहिद मुदक्कर गायब जैसे यमशुरू, वाहिद मुअन्नस गायब जैसे तनसुरू, वाहिद मुदक्कर हाजिर जैसे तनसुरू, वाहिद मुतकल्लिम जैसे अनसुरू, जमा मुतकल्लिम जैसे ननसुरू। जी। सात चीजों के आखिर में नून आता है, इसको नून एराबी कहते हैं। वो सात चीजें ये हैं:
हमजा साहब को अपनी स्क्रीन जो है वो अपनी वीडियो बंद करनी पड़ेगी ताकि रुहेल साहब पढ़ सकें। चले रुहेल साहब, आप बिस्मिल्लाह करें। उस्ताद मुझसे तस्निया कहीं डांट मुदक्कर ना गायब। पड़े। जी। जी हमजा साहब। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, आप चले रुहेल साहब। अच्छा, नंबर 1 तस्निया मुदक्कर गायब जैसे यंसुरानी। नंबर 2 तस्निया मुअन्नस गायब जैसे तंसुरानी। नंबर 3 तस्निया पहला मुदक्कर वाला हाजिर जैसे पहला वाला क्या तंसुरानी। था? तस्निया मुजक्कर गायब क्या था? तस्निया मुजक्कर गायब आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट वन। यंसुरानी। जी ठीक है, या के साथ है जी। फिर 2 तस्निया मुअन्नस गायब जैसे तोसुरानी। फिर तंसुरानी ठीक था। तीसरा तंसुरानी। तंसुरानी। फिर तीसरा तस्निया मुदक्कर हाजिर जैसे तुनसुरानी। तंसुरानी। फिर तंसुरानी। फिर तस्निया मुअन्नस हाजिर जैसे तंसुरानी। फिर जमा मुदक्कर गायब जैसे यमसुरूना। फिर जमा मुदक्कर हाजिर जैसे तंसुरूना। और फिर वाहिद मुअन्नस हाजिर जैसे तंसुरीना। जी। और 2 सिगों के आखिर में नून मफ्तूह अलामत जमा मुअन्नस ओ ज़मीर फाइल आता है। वो जमीर फाइल। दो जमीर चीजें फाइल हैं। आता। ज़मीर फाइल, वो 2 चीजें ये हैं। जमा मुअन्नस गायब जैसे यंसुरूना। जमा यंसुरना। मुअन्नस हाजिर जैसे तंसुरूना। ओ सॉरी, माफ, तंसुरना। यंसुरना। बगैर वाव और के। फिर दोनों में बगैर वाव के, ठीक है। जी तो अब अगर हम जी जी। गिरदान की तरफ जाएं, जो गिरदान आप हजरात ने पहले से याद भी की है और देखी भी है, तो वो गिरदान ये है। अगर हम देखें तो यहाँ 7 जगहों पे नून एराबी कहा जा रहा है। ये वाला, ये वाला, ये 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 और ये और ये। दो के बारे में कहा जा रहा है कि नून जमा मुअन्नस है, तो जमा मुअन्नस के दो सीगे आ रहे हैं। एक ये जमा मुअन्नस हाजिर है, इसके आखिर में जो नून लगा हुआ है ये नून जमा मुअन्नस और ज़मीर फ़ाइल कह रहे हैं इसको। ठीक है, मैं ज़मीर फ़ाइल की वजाहत करता हूँ। इसी तरीके से यहाँ जो है जमा मुअन्नस गायब, इसमें भी नून को नून जमा मुअन्नस और ज़मीर फ़ाइल कह रहे हैं। ज़मीर फ़ाइल का मतलब जहन में रखिए, नून जमा मुअन्नस तो होपफुली के क्लियर है। ज़मीर फ़ाइल का मतलब ये, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। और ये बात हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अरबी के अंदर जो है फ़ैल के साथ कभी प्रोनाउन वर्ड्स में आ जाती है और कभी नहीं आती है। तो अगर लफ्ज़ों में आ जाए तो उसको ज़मीर ज़ाहिर या बारिस कहते हैं, और अगर तलफ़ुज़ ना हो रहा हो, उसको प्रोनाउंस ना किया जा रहा हो, तो फिर उसको ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं। तो ये जो नून है, ये यंसुरना के आखिर में जो नून लगा हुआ है, ये इस बात की भी अलामत है कि ये जमा मुअन्नस का नून है, और इस बात की भी अलामत है कि ये इसका सब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये नून इसका सब्जेक्ट है। इसी तरीके से तंसुरना में ये वर्ब है तंसुरु, और ये नून इसका सब्जेक्ट, यानी प्रोनाउन की शक्ल में ये उसका सब्जेक्ट भी है। तो ज़मीर फ़ाइल का मतलब है द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब का, उसके लिए प्रोनाउन आ रही है, और वो प्रोनाउन जो है वो नून की शक्ल में आ रही है। तो ये क्लियर है या इसको रिपीट करने की जरूरत है? रिपीट कर दी। रिपीट कर रिपीट दो। कर देता हूँ। अगर आप देखें, इसकी ट्रांसलेशन देखें, तंसुरना की ट्रांसलेशन हम क्या कर रहे हैं? मदद कर रही हो या करोगी तुम कई औरतें। ये जो तुम कई औरतें की जो ट्रांसलेशन है ना, ये इस नून से आ रही है। ये नून से ये ट्रांसलेशन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नून जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तंसुरु एक वर्ब है, मदद करना, हेल्प, टू हेल्प आउट, ठीक है। और उसको सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब जो है वो बगैर सब्जेक्ट के नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट, उस काम को करने वाला जो है वो कौन है? वो जमा मुअन्नस है, यानी मोर देन 2 फीमेल्स, ठीक है, जमा मुअन्नस है। और हाजिर वाली है, यानी सेकंड पर्सन है, ठीक है। और इन सारों को यानी डिनोट क्या, कौन सा लफ्ज कर रहा है? तो ये नून उसको बता रहा है। ये नून बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो तुम कई औरतें का तर्जुमा आएगा। तो गोया कि ये नून जो है
वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, और वो वाली प्रोनाउन जो कि इस सेंटेंस के अंदर क्या बनेगी, अगर सेंटेंस के जिस तरह से हम इंग्लिश के अंदर उसको तोड़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर उस एतबार से देखें तो ये वर्ब है, और अरबी में उर्दू में सब्जेक्ट जो आता है वो बाद में आता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, बस ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये नून जो है, ये नून जमा मुअन्नस, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सब्जेक्ट को अरबी की ग्रामर में फाइल कहते हैं। अरबी ग्रामर में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। और प्रोनाउन को जमीर कहते हैं। प्रोनाउन पहले आ चुका है कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जमीर जो है वो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो रही है, बजाय उन खवातीन का नाम जिक्र करने के, उन खवातीन के नाम की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा, जमीर कहलाएगा। तो ये जमीर भी है, ये नून, और फाइल की जमीर है, और साथ में ये जमा मुअन्नस का की मीनिंग भी दे रहा है, इस वजह से इसको नून जमा मुअन्नस भी कहते हैं, और इसको जमीर फाइल भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी नून जमा मुअन्नस भी है और जमीर फाइल भी है। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इसको नून अराबी क्यों कह रहे हैं, ये जो बाकी सारे हैं, ये जो 7 सिगों के अंदर नून लगा हुआ है, इसको नून एराबी क्यों कहते हैं? तो जहन में रखिएगा, नहव कहाँ तक पहुंच गई है आपकी, उसमें एराब की बहस आ गई है नहव के अंदर, यानी एराब किसे कहते हैं नहव में, कोई बता सकता है जी। किसे कहते हैं एराब? वैसे उस्ताद हमने अभी तक एराब पे नहीं पहुंचे लेकिन जो हरकत लगती हैं वो एराब होते हैं। हाँ, ये उर्दू के एतबार रफा से नसब आप जर। जो कह रहे हैं, ये उर्दू के एतबार से आपने सही कहा कि जो हरकत होती हैं, जैसे या के ऊपर जबर लगा हुआ है, नून के ऊपर जज़म लगा हुआ है, सौद के ऊपर पेश लगा हुआ है, रा के ऊपर पेश लगा हुआ है, ये हरकत है ना, इसी को हम एराब कह देते हैं उर्दू में। लेकिन ग्रामर के अंदर जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें इसे हरकत कहते हैं, इसको एराब नहीं कहते। टेक्निकली एराब कहा जाता है जो किसी लफ्ज के आखिरी वाले लेटर पे जो हरकत आती है या जो लेटर आता है उसको एराब कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यनसुरु में एराब जो है ये जम्मा है, यनसुरु में एराब जम्मा है, लेकिन यनसुरानी में एराब ये पूरा नून है। यनसुरु के अंदर एराब जम्मा है और यनसुरानी के अंदर एराब पूरा नून है। ये बहस जो है वो असल में नहव की बहस है, सर्फ की बहस नहीं है, वहाँ इंशाल्लाह लजीज आ जाएगी आपके सामने। चूंकि ये नून पूरा एराब है, इस वजह से इसको नून एराबी कहते हैं। ठीक है, ये नून चूंकि खुद एराब है, यानी एराब कभी हरकत से होता है और कभी हर्फ से होता है। ये एराब बिल हरका है और ये एराब बिल हर्फ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हरूफ हैं जिनसे एराब शो होता है, तो ये भी एक एराब है जो कि हर्फ से शो हो रहा है। वो हर्फ कौन सा है, कौन सा हर्फ है? से हाँ नहीं। नून है, नून है। ठीक है, वो हर्फ नून है, इस वजह से इस नून को क्या नाम दिया जाता है, नून एराबी कहा जाता है। ठीक है, उस्ताद इसमें अलिफ भी एराब में शामिल होता है, नहीं अलिफ नून में नहीं अलिफ भी इसका। नहीं, अलिफ एराब में शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि भाई अलिफ एराब में शामिल नहीं है और नून एराब में शामिल है? ये अरब के यूजेज को देखते हुए पता चला कि अरब इस्तेमाल कैसे करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो अरब जब इससे पहले यनसुरु से पहले लम लेके आता है, लम यलिद आपने पढ़ा ना, लम यलिद वलम यूलद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद, यलिद से पहले जो है वो क्या आया हुआ है, लम आया हुआ है। यही लम अगर आप यहाँ यनसुरु से पहले लेके आएंगे तो ये यनसुरु की बजाय यनसुर हो जाएगा। ये जो जम्मा है ये जज्म से तब्दील हो जाएगा, यनसुरु नहीं होगा बल्कि लम यनसुर हो जाएगा। और यही लम जब आप इस पे लगाएंगे तो ये नून गायब हो जाएगा, लम यनसुरा, अलिफ गायब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लम ने यहाँ के एराब पे भी असर किया और यहाँ पे भी एराब पे असर किया।
यहाँ के एराब पर असर ये किया कि इस पेश को, इस जम्मा को जज़म से तब्दील कर दिया, और यहाँ के एराब पर यह असर किया कि ये नून गायब हो गया। तो नून एराब हुआ, अलिफ एराब में शामिल नहीं हुआ। इसी तरीके से ये नून भी एराबी है। जब लम यहाँ आएगा तो ये लम यंसुरू हो जाएगा, नून गायब हो जाएगा। इससे भी वाज़ेह हुआ कि यहाँ पर भी नून एराब है, वाव एराब नहीं है। इस तरीके से लम तंसुरा, इसी तरीके से लम तंसुरा, यहाँ पे लम तंसुरू, लम तंसुरी, लम तंसुरा। ठीक है, तो ये नून जो है वो गायब हो रहा है एक एराब के तौर पे। इस वजह से इसको नून एराबी कहते हैं। वाज़ेह है ये? ठीक है। तो अब जो है हमारे सामने मुजारे मारूफ या मुजारे मालूम बनाने का कायदा आ गया कि मुजारे मालूम जो है वो बनता है माजी मालूम से, इस तरह से कि कुछ चेंजेस उसके शुरू में होती हैं, कुछ चेंजेस उसके आखिर में होती हैं। शुरू की चेंजेस ये हैं कि उसके शुरू में अलामत मुजारे लग रहा है। पहले नसरा था, सिर्फ माजी में सिर्फ क्या था, नून सौद रा था। अब मुजारे के शुरू में क्या आ रहा है, कहीं या आ रहा है, 4 सीगों में या आ रहा है, 8 सीगों में ता आ रहा है, एक सीगे में हमजा आ रहा है, एक सीगे में नून आ रहा है। ठीक है। दूसरी चेंजी ये आई है कि माजी के आखिर में नसरा था, जबर था, यहाँ जो है वो पेश आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगहों पे आखिर में क्या आ रहा है, पेश आ रहा है। ये चेंजेस हो गई ना, कि वहां जो है वो जबर था, यहाँ पेश हो गया। दूसरा, 7 जगहों पर जो है वो नून एराबी आ गया, जो वहां नहीं था, यहाँ है। और एक सीगे के अंदर जो है वो नून जमा मुअन्नस आ गया, जो वहां नहीं था लेकिन यहाँ है। ठीक है। वहां नसरना में नून था, लेकिन यहाँ जो है वो दो तरह की तब्दीलियां हैं, यानी एक तब्दीली आप कह सकते हैं कि जमा मुअन्नस गायब के अंदर सिर्फ एक तब्दीली है, और वो ये है कि शुरू में जो है वो या आ गई। बाकी सब के अंदर दो दो तब्दीलियां हैं, शुरू में या ता या हमजा या नून आना, और आखिर में जो है या पेश आना या नून अराबी आना या नून जमा मुअन्नस आना। ठीक है। ये अभी हमने जो है वो कायदे के अंदर भी इसको पढ़ लिया। अब सवाल पैदा होता है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये तो इसका एक्टिव हो गया यंसुरु। इसका पैसिव जो है उसका बहुत आसान तरीका है। वो सिर्फ इतना है कि हमने ये करना है कि आखिर से पहले वाले पर जबर लगाना है और अलामत मुजारे पे पेश लगाना है। जस्ट इट, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो यंसुरु, या यहाँ पे अलामत मुजारे इस वक्त इसके ऊपर जबर है या पेश है? जबर है, तो ये पेश से तब्दील हो जाएगा। और यहाँ आखिर से पहले वाले पर क्या लगा हुआ है? पेश। पेश लगा हुआ है, वो किससे तब्दील हो जाएगा? जबर से तब्दील हो जाएगा। तो यन शुरू क्या बन जाएगा? यंसुरु, युनसर। युनसुरु, युन सरू, युन सरू। यन शुरू जो है वो क्या बन जाएगा? युन सरू। पहले वाले पर पेश, अलामत मुजारे पे पेश, और आखिर से पहले वाले पे जबर, बाकी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से देख लें कि अलामत मुजारे यहाँ पर क्या है, या है, युन, और यहाँ पे आखिर से पहला वाला अगेन वही स्वाद है, तो ये क्या बन जाएगा? युन, युनसरानी। युन सरानी। ये क्या बन जाएगा? युनसरु। युन सरूना। ये तुनसर। तुनसरु। तुन सरू। ये तुनसरानी। आगे पढ़ते जाएं। युनसरना। जी। तुनसरु। तुनसरानी। जी। तुनसरूना। जी। युनसरीना। सॉरी, ता है। तुनसरीना। तुनसरीना। जी। जी। तुनसरानी। जी। और तुनसरना। ठीक और है। फिर उनसरू और जी। युनसरू। जज़ाकल्लाह खैर। जी, कोई और साथी अब ट्राई करें, कौन कर रहे हैं शुरू से आखिर तक? मैं ट्राई करूँ। जी। हाँ, तुनसरू, युन सरू से नहीं शुरू सॉरी होगा। नहीं, युनसरू, युनसरानी, युनस युनसरा युनसरूना, ठीक है। युनसरू, युनसरू, तुन सरू। तुनसरू,
हाँ, तुनसरानी, तुनसरना, तानी तुन या है यहाँ। सॉरी, युनसरना, जी। तुनसरू, तुनसरानी, तुनसरूना, जी। तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू, ननसर, नहीं, अलामत नुनसरू, मुजारे पे पेश लगा। नून शरू, जज़ाकल्लाह खैर। नुनसरू। जी। जी, कोई और साथी? मैं कोशिश करता हूँ जी सर। रोहित साहब। युनसरू युनसरानी युनसरूना, तुनसरू तुनसरानी यंसुरना, यून सरना। यंसरना, नहीं, यून यंसरना, सरना। युनसरना, जी। युनसरना, तुनसरू तुनसरानी तुनसरूना तुनसरीना तुनसरानी हाँ। तनसरना, हम्म। हम्म। तुनसरना, हम्म। उनसरू, नुनसरू। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अगले साथी। हाँ, सही। जी। युनसरु युनसरानी युनसरूना, तुनसरु तुनसरानी युनसरना, तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना तुनसरीना, तुनसरानी तुनसरना, अंसरु उन नंसरु। सरू। उन अच्छा, सरू। उनसरु नुन सरू। नुनसरु। नुन सरू। जज़ाकल्लाह खैर। गाड़ी से जी, नेक्स्ट। जी फरमाए। आई थिंक मैं लास्ट था। ये तरतीब थोड़ी सी खराब नहीं लगती, आई एम सॉरी, लेकिन क्या? यानी कि थर्ड, अगर हम फोर्थ फिफ्थ को देखें और फिर सिक्स को देखें, तो जी। पहले दो पे ता यूज हो रहा है, देन थर्ड में फिर या जी। आ गया। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही थोड़ा फरमा सा रहे हैं आप। यानी ये इसमें कोई सिमेट्रिकल वो है नहीं इधर। है, अजीब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमें अब वो बात अपने जहन में दोबारा से रिकॉल करनी होगी जो हमने बिल्कुल डे वन पे कही थी, कि ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि ग्रामर बाद में बनती है और लैंग्वेजेस पहले वजूद में आती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी ने ग्रामर बनाई और फिर उसके बाद लैंग्वेज वजूद में आई, बल्कि लैंग्वेज पहले एग्जिस्ट करती है, फिर उसको देखते हुए जो है वो ग्रामर उसमें से निकाली जाती है। हर जबान का यही वो होता है। तो अरब इसको कभी भी इस तरह, पहले पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, अरब इस तरह गिरदाने नहीं करते। अरब तो अरबी इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें तो ये गिरदाने याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारी आसानी के लिए जो है वो गिरदाने बनाई गई हैं। अच्छा, इसमें आसानी हमारे लिए किस एतबार से है? इसको अगर आप देखें तो ये थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाए गए हैं। अरब जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ता इस्तेमाल करते थे पहले से। इसी तरीके से थर्ड पर्सन बोथ के लिए भी अरब जो है वो ता इस्तेमाल करते थे पहले से। और अरब जो है वो थर्ड पर्सन और प्लूरल फीमेल के लिए या इस्तेमाल करते थे। उनके यहाँ पहले से या इस्तेमाल होता था। अब जब मुझे और आपको अरबी ग्रामर पढ़ाने के लिए कोई किताब लिखनी पड़ी, तो इसको एक साथ जमा किया गया कि एक जो कैटेगरी है उसको एक साथ लाया जाए। अब चाहे उसके शुरू में या आ रहा हो या ता आ रहा हो। ये आप देख रहे हैं, ये कैटेगरी इस एतबार से यहाँ देखें, अगर आप वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, ये एक कैटेगरी है। वाहिद मोन्नस गायब, तस्निया मोन्नस गायब, जमा मोन्नस गायब, ये एक कैटेगरी है। तो एक कैटेगरी को उन्होंने जो है वो टारगेट किया। अब चाहे उसके शुरू में अरब जो है वो क्या इस्तेमाल करते हो, या इस्तेमाल करते हो, चाहे ता इस्तेमाल करते हो, अरब तो पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम अरबों को पाबंद नहीं कर सकते कि चूंकि हमारी ये तरतीब यूं बन रही है तो अब तुम यूं कर लो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये जैसे अगर बेहतर हम होगा। इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना। ठीक है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी लगा देते हैं। ठीक है। और इरेगुलर वर्ब्स वो हैं कि जिसके अंदर जो है वो ईडी नहीं लगता, कहीं ईडी आता है कहीं नहीं आता है। जैसे राइट रोट रिटन है। ठीक है। तो अगर आप कोई कहे कि जनाब राइट रोट नहीं, राइटेड राइटेड होना चाहिए, तो उसको कहा जाएगा नहीं जनाब, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो राइट की सेकंड फॉर्म रोट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रोट ही करना पड़ेगा। और वो थर्ड फॉर्म जो है वो रिटर्न इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिटर्न ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट। ठीक है। जबान पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें हमें सिखाने के लिए उसको किसी तरतीब में लाना था,
तो आम तौर पे ये तरतीब बेहतर समझी गई कि पूरी कैटेगरी को एक साथ कैटर कर लिया जाए, फिर सेकंड कैटेगरी को लिया जाए, फिर थर्ड को लिया जाए, फिर फोर्थ को लिया जाए। होपफुली कि क्लियर है ये। जी जी बिल्कुल, जजाकल्लाह। ठीक है, अकरमकुल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, यही फ़ैल मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका इन्होंने उसी तरह से बताया हुआ है कि मुज़ारे मजहूल को फ़ैल मुज़ारे मालूम मुतअद्दी से बनाया जाता है। हाँ भाई, किसी को याद है मुतअद्दी का क्या मतलब पढ़ा था हमने? लाजिम और मुतअद्दी। है भाई किसी ऐसे को वाला याद? तो वर्क कर लेते हैं, आप लाजिम बता दें, मैं बता दूँ। बहुत खूब, ये भी ठीक है। हमने फ़ैल की एक किस्म पढ़ी थी, तकसीम पढ़ी थी कि फ़ैल कुछ ऐसे होते हैं जो फाइल पर पूरे हो जाते हैं, और कुछ फ़ैल ऐसे होते हैं कि जो फाइल के साथ उनको ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, मफूल भी चाहिए होता है। तो वो फ़ैल जो फाइल पर पूरा हो जाता है वो फ़ैल लाजिम कहलाता है, और वो फ़ैल जिसमें फाइल के साथ मफूल भी चाहिए होता है उसे फ़ैल मजहूल कहते हैं। फ़ैल मुताद्दी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, फ़ैल मुताद्दी कहते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब फ़ैल मुताद्दी होता है, और इनट्रांजिटिव जो है वो फ़ैल लाजिम होता है, यानी जो खुद पर ही पूरा हो जाए, फाइल पर ही पूरा हो जाए, वो फ़ैल लाजिम है। और जो फाइल के साथ मफूल भी जिसको चाहिए हो तो वो फ़ैल मुताद्दी है। जैसे राइट जो है या नसरा जो है, ये फ़ैल मुताद्दी है। क्यों? क्योंकि नसरा के अंदर एक मदद करने वाला होगा और एक वो होगा जिसकी मदद की जा रही है। ठीक है, जबकि सोना, सो गया, इसमें सिर्फ सोने वाला होगा, इसके अलावा की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फ़ैल लाजिम है, सोना फ़ैल लाजिम है, और मदद करना जो है ये फ़ैल मुताद्दी है। तो फ़ैल मजहूल जो है ये फ़ैल मुताद्दी से ही बनता है, फ़ैल लाजिम से नहीं बनता। क्या टेक्निकल वजह हो सकती है इसकी? कर सकते, दोबारा अपना जुमला रिपीट कर सकते हैं? जी, मैंने मुताद्दी ये जो है। कहा कि फ़ैले 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 मजहूल, फ़ैले मजहूल जो है वो सिर्फ फ़ैले मुताद्दी से बनता है, फ़ैले लाजिम से नहीं बनता। तो इसकी टेक्निकल वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उस्ताद पहले पहले मजहूल म- के अंदर आपको पता नहीं होता कि वो छुपा हुआ होता है, जज़ाकल्लाह और खैर पहले जी। मुतादी जो होता है वो भी जी, छुपे वाले के बिल्कुल लिए ठीक। होता है। फ़ैल मजहूल असल में फ़ाइल की तरफ उसको एसोसिएट नहीं किया जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट की तरफ उसको एसोसिएट किया जाता है। पैसिव वॉइस होता है ना, पहले मजहूल का मतलब पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को जो है वो सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो चूंकि सब्जेक्ट के साथ जोड़ना ही नहीं है उसको, तो ऑब्जेक्ट के साथ ही जोड़ना है। अब पहले लाजिम का तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, इस वजह से फ़ैल लाजिम का फ़ैल मजहूल यानी पैसिव वॉइस नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, फ़ैल मजहूल जो है वो हमेशा उस फ़ैल से बनता है जो फ़ैल मुताद्दी हो। इंग्लिश के अंदर भी इसी तरह से होगा, इंग्लिश के अंदर भी इसी तरह से होगा। मिसाल के तौर पे आई स्लीप इन नाइट, इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप? ये कोई ट्राई करें, नहीं बन रहा या बन जाएगा? नहीं बनेगा नहीं ना? बन रहा। नहीं बन रहा, वजह वही है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, यही मसला है। ठीक है, हाँ अलबत्ता अगर आप कहें कि आई हेल्प हिम, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, यही इज, क्या होगा? हाँ, आई हेल्प्ड हिम अगर होगा तो ही वॉज हेल्प बाय मी। ठीक है, तो ये बन गया। वजह क्या है? क्योंकि वो पहले मुताद्दी है। ठीक है, वाज़ेह ही है। ठीक है, तो ये इस वजह से इन्होंने बीच में बढ़ा दिया है ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। तो मुज़ारे मजहूल को पहले मुज़ारे मालूम मुताद्दी से बनाया जाता है,
अलामत मुजारे को जम्मा दे देते हैं, या ता हमजा नून को जम्मा दे देते हैं, और आखिर से पहले वाले हर्फ पर अगर फतहा ना हो तो फतहा दिया जाए। अगर पहले से फतहा है तो कुछ भी नहीं करना, उसमें सिर्फ गोया के अलामत मुजारे को जम्मा देना होगा, बाकी कुछ भी नहीं करना होगा। और बाकी हुरूफ को अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए, जैसे यन शुरू से युन सरू। यन शुरू में या अलामत मुजारे, इस पर जम्मा लगा दिया, और सौद जो कि आखिर से पहले वाला हर्फ था, इस पर जबर दे दिया, फतहा दे दिया। और यज तनीबू से युज तनाबू, यज तनीबू में या अलामत मुजारे, इस पर पेश दे दिया, जम्मा दे दिया। और तनीबू, बा से पहले नून है, बा से पहले नून है, उसके ऊपर कसरा है, उसको जो है वो फतहा दे दिया, तो युज तनाबू बन गया। वाज़ेह ही है जी। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फ़ेले मुज़ारे मनफी बनाने का तरीका, शुरू में ला लगा दें या माँ लगा दें, तो जो है वो क्या बन जाएगा, फ़ेले मुज़ारे मनफी बन जाएगा। बस ला यंसुरु का मतलब है मदद करता है, ला यंसुरु का मतलब क्या होगा, मदद नहीं करता। ठीक है। युनसरु का मतलब है मदद की जाती है उस एक शख्स की, ला युनसरु का मतलब क्या होगा, मदद नहीं की जाती उस एक शख्स की। वाज़ेह ही है? ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपने ट्रांसलेशंस करनी है, मैं आपके सामने वर्ड कहूंगा और आपने जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। युन यन शुरू का मतलब है मदद कर रहा है या करेगा वो एक मर्द। मैं कहता हूँ युन सरू, तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप, कोई भी कर लें। पहले वाले की मदद मैं कर की देता हूँ, गई चले। या की मदद जाएगी ठीक हो उस है, एक रही है। मर्द। ठीक है, ये जैद साहब जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, बताएं जैद साहब। मदद की गई या की जाएगी उस एक मर्द की। की गई नहीं, की जाती है या की जाएगी, सॉरी, की मदद जाती की है, जाती सॉरी। है या की जाएगी उस एक मर्द की। वेरी गुड, ठीक है। युन सरानी, जी रुहेल साहब। अम उन वो मर्द की मदद की जा रही है या की जाएगी। जबरदस्त जी। युन सरूना, उन कई मर्द की मदद की जाएगी या जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, हमजा साहब आप फरमाएं, तुन सरू। आ, वो एक औरत मदद कर रही है या करेगी उस ये एक तो मर्द की। एक्टिव, ये तो एक्टिव की ट्रांसलेशन हो गई। पैसिव में क्या इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आप। आ, मदद होगी उस एक मर्द की, आ, उस एक वो एक औरत की, औरत के जरिए। अच्छा। नहीं ये नहीं, नहीं नहीं, आप देखें ये वर्ड को देखें, ये कौन सा वर्ड है, वाहिद मुअन्नस गायब, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक इसका एक्टिव का है। हाँ, ट्रांसलेशन सही ये सही। है, तो इसका पैसिव का ट्रांसलेशन क्या होगा। मदद होगी, हो रही है या होगी उस एक औरत। जी, मदद की जा रही है या की जाएगी उस एक मर्द की, होगी या हो रही है या होगी उस एक औरत की। ठीक है। अच्छा जी, जी हामिद साहब, तुम सरानी। हाँ, जी क्या सर, तुम सुरानी जी मदद की जाएगी उस एक औरत की, नहीं सॉरी, तुम एक औरत की। नहीं, ये वाला सीखा है, तस्निया मोनस गायब। ओके, लेकिन अच्छा सही, तुम सुरानी ये रिपीटेड वर्ड इसका है ना, होगा, वहां पे भी यही आता है। तो फिर दोनों नहीं सही होंगे। हाँ, हमने अभी असल में तरतीब से चल रहे हैं ना, वैसे तो ठीक है, अगर आपके सामने तरतीब ना होती और वैसे ही आपसे पूछा जाता तो आप वो वाली ट्रांसलेशन भी कर सकते थे। अभी फिलहाल हम तरतीब सही। से चल रहे हैं ना, एक एक सीखा इस हाँ एतबार जी जी से। जी। बिल्कुल, मदद की जाएगी उस एक और उन दो औरतों की। प्रेजेंट वाला ट्रांसलेशन छूट गया। मदद की जा रही होगी या की फिर जा की रही है, जाएगी। नहीं की जा रही है या की जाएगी।
तुम दो उन दो सही औरतों की। ठीक हो गया। बिल्कुल अच्छा जी, जी। इस्माइल साहब, यनसुरना से युनसरना जी। मदद की जा रही है या मदद की जाएगी वो कई औरतों की। उन कई औरतों की। ठीक है, उन कई मदद औरतों की जा रही है या की जाएगी उन कई औरतों की। औरतों की। जी हमजा साहब, तुनसरो। जी ट्राई करें। सॉरी, मदद हो रही है या होगी तुम एक मर्द की। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आ रहा है आप लोग, होपफुली के बाकी ट्रांसलेशन आप लोग कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल है तो फरमाइए। क्लियर है। चलें, तो लास्ट वीक हमने आप लोगों को असाइनमेंट ये दिया था कि आप लोग कोई 10 वर्ड्स कुरान करीम से निकाल के लाएंगे। तो कोई शेयर करना शुरू करें, जो आपने अपने पास लिखा है उससे बताना शुरू करें। कौन स्टार्ट कर रहे हैं? सर मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा, सॉरी। याद है। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात को याद दिलाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा लगता है। क्या तरीका हो सकता है आप लोगों को याद दिलाने का? नहीं नहीं, हमें खुद याद रखना चाहिए। आप नहीं नहीं, मैं कोई उसमें नहीं, संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, याद भी दिलाया जा सकता है, उसका तरीका बताएं आप लोग। उस्ताद एक किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमारी बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स ना फोल्डर पे अपलोड हो जाती हैं, तो मे भी अगर हम इसी तरह से कर देंगे कि उससे ये होता है कि रिमाइंडर मिल जाता है कि अच्छा ये असाइनमेंट ड्यू है लास्ट वीक की, तो उधर ही फिर कोई इशू सबमिशन भी हो नहीं है। जाती है। उधर हाँ, सबमिशन ये भी हो जाती असल है में रिटर्न फॉर्म। जी, जी ठीक है, और सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी हम उसको याद दहानी के लिए तो ये किया जा सकता है कि हम उसको वहाँ पे अपलोड कर दें। लेकिन सर्फ के तमाम असाइनमेंट्स जो हैं वो रिटर्न से काम चलेगा नहीं, आपका कुछ आपको जो है ना वो ज़बानी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जी जी ठीक है बिल्कुल। कि उसकी याद दहानी के लिए आपके पास वो शो तो हो रहा होगा, आपके असाइनमेंट्स के अंदर शो हो रहा होगा, तो आप उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। चलें, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह यही कर लेंगे। अभी आपको एक और असाइनमेंट हम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये अगर इस पिछले असाइनमेंट में से किसी का कोई एक आध वर्ड भी किसी ने अगर निकाला है कुरान करीम का, तो वो शेयर करें ज़रा। तो बदकिस्मती से लगता है कि किसी को भी मौका नहीं लगा, या क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी नहीं कर सका? साथ समय मैं अपने तरफ से अगर बताऊँ तो मैं पढ़ते पढ़ते कभी पर बस नोट कर लेता हूँ, लेकिन उसको लिखना जो है वो भूल जाता हूँ। कुछ फोन पे अक्सर चलें, इस्तेमाल कर रहा जो होता हूँ तो कुछ लिखना वाला नहीं होता इसमें। कोई बात नहीं, अभी उसमें से जो वर्ड भी आपको याद आ रहा है ना, वो आप बता दें। कोई सा भी वर्ड आपको याद आ रहा है कि हाँ ये मुझे याद आया था, वो आप बता दें। एक मिनट मैं आपको भी मिलकर बता देता हूँ, मुझे यहाँ पे याद ही होगा। जी जरूर। सात सूर्य मुल्क में अहसनु आया था, फिर अमला, ठीक है, ahsanu फिर आपको लगा कि खलक़। ये क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ahsanu आपको लगा कि ये क्या है? माजी है, मुजारे है, क्या लगा? ये मुझे उसकी वजन पे महसूस हुआ। हाँ अहसनु, ठीक है, अफालू लगा आपको ना? यहसनु। हाँ जी। ये नहीं, अनसुरु की तरह आपको लगा ना? ये इस तरह लगा आपको? जी ठीक है, अलबत्ता जी ये है नहीं, ये है नहीं ये। ठीक है, उसकी वजह क्या है? कि ये नहीं है। ahsanu जो है, अगर बतौर वर्ब के जब इस्तेमाल होता है, अरबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ahsunu होता है। जब वर्ब इस्तेमाल होता है तो ahsunu होता है, सीन पर पेश के साथ अरब इस्तेमाल करते हैं। और जब सीन पर जबर है तो ये अरब जो इसको बतौर वर्ब के इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल करते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है। हसनुन, अहसनु।
ठीक है, वो डिटेल्स इंशाल्लाह आ जाएंगी आपके पास, सर्फ में भी आएंगी और नहव में भी आएंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल अहसनु का तो मामला ये है। उसके बाद आपने कहा अमला, अमला जो है ये तो आपको किस पे लगा, नसरा की तरह लगा आपको? फ़अला। हाँ, नसरा की तरह लगा ना, नसरा नसरा। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप उस पर गौर करें सूरह मुल्क पे, तो अमला के ऊपर आपको दो जबर भी लगे हुए नजर आए होंगे, तनवीन भी लगी हुई नजर आई होगी, ऐसे ही है। तबारकल्लज़ी याद बियदिहिल नहीं आ मुल्क व रहा। हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये अमला जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो वक्फ करते हुए पढ़ रहे हैं, अगर इसको मिलाते हुए पढ़ेंगे तो अमलम व हुवल अज़ीज़ुल गफूर बन जाएगा ये। ठीक है, तो अमला अच्छा, के ऊपर तनवीन लगी हुई है, और याद रखिएगा कि फ़ैल के ऊपर कभी तनवीन नहीं आती, सही। ये याद रखिएगा, फिर ठीक है। खलक़ आया। फ़ैल को, हाँ, ये जो है वो बिल्कुल नसरा की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल खलका और नसरा एक जैसा है। तो क्या इसका सीगा आप बताएंगे? अगर आपसे नसरा का सीगा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, खलका का क्या बोलेंगे? ये वाहिद, मुज़क्कर, गायब। ठीक है, फ़ैल, फेले माजी। माजी, माजी मालूम, फ़ैल माजी मालूम, जज़ाकल्लाह मालूम खैर। मालूम। तो खलक का मतलब होता है पैदा करना, तो खलका का का ट्रांसलेशन क्या करेंगे अब आप? माजी के वाहिद मुजक्कर गायब वाला ट्रांसलेशन करें। खलक मतलब बनाया उस एक सही है, मर्द ने। उस एक जात ने, या अल्लाह ताला के लिए असल में इस्तेमाल हुआ है खलका, तो का जी मतलब जी, ये होगा कि जात। बनाया उस एक जात ने। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत, और कोई लफ्ज याद आ रहा है आपको? जी मैंने सूर्य काफ में पढ़ा था यूनजीरा, लियोनजीरा का जुमल, लियोनजीरा। जबरदस्त, लियुनज़िरा। क्या लगता है आपको ये क्या है, माजी है मुजारे है? ये मुजारे है, मुताती मुजारे, मेरे ख्याल। मुजारे है, ठीक है। और मुजारे कैसे आपको, क्या अगर कोई पूछे कि आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये मुजारे है, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये मुजारे है? वो इसमें इसके शुरू में हरूफ इल्लत है। रूफे, इल्लत। नहीं, हरूफ इल्लत तो मुजारे की कोई सिंबल और साइन नहीं है ना। साइन मुझे फिर जो है, मतलब यही या हाँ, शुरू में अलामत है। तो। हाँ, नहीं ठीक है, आप अलामत। सही कह रहे हैं, ये हाँ ये क्या है, अलामत मुजारे अच्छा इसके शुरू में। अच्छा, क्या अलामत कहेंगे है इसको? मुजारे। अलामत इसके मुजारे, अलामत है। हरफ इल्लत अलग चीज है और अलामत ठीक मुजारे है, अलग सॉरी, चीज है। इनको ठीक है ना, मिक्स कर आप दिया। मिक्स कर गए इनको जी। हाँ। ठीक है, तो ये लियुन देरा, युन देरा जो है ये पहले मुजारे है, इस वजह से कि इसके शुरू में जो है वो अलामत मुजारे लगी हुई है, ये इसकी अलामत है जी। जज़ाकल्लाह। और कोई जी, और किसी को कोई वर्ड याद पड़ रहा हो? सूर्य मायदा में मैंने पढ़ा था माँ जआला जआल लहू। मा जअल अल्लाहु लकुम फिद्दीन मिन हरज, नहीं, उसी का कह रहे हैं। नहीं, ये है माँ जआल लहू मिन बहीरतिन वला मा जअल साइबतिन। मिन बहीरतिन वला साइमतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन अल्लज़ीना यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब। जी, तो ये क्या लगता है आपको, कौन सा वो ये है? मुझे माँ जानना लगता है, जो है फेल फेल माज माजी लगता है या मुजारे माजी लगता है? माजी लगता है, एक बात हो गई। अब हाँ, सीगा कौन सा लगता है? मारूफ हो। हाँ, पूरा बताएं, सीगा जब बताएंगे तो इस तरह बताना शुरू करेंगे आप, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना सीगा, इस तरह बताना शुरू करें। कौन सा सीगा लग रहा है? वाहिद लग रहा है, जी, तस्निया ये लग रहा है है, जमा फेल लग रहा है? माजी मालूम। ये आखिर और में इसमें बताएंगे, पहले सीगा अच्छा, सॉरी, बताएंगे आखिर में पहले। बताएंगे जी। हाँ, हम्म। सबसे पहले आएगा जी वाहिद मुजक्कर गायब। जी, और पहल। फिर माजी अब मस फिर माजी मनफी मालूम। जज़ाकल्लाह खैर, माजी मनफी मालूम, मनफी क्यों है ये? क्योंकि क्योंकि माँ लगा हुआ है। इसके शुरू में माँ लगा हुआ है, इस वजह से माजी मनफी है। वेरी जी। गुड, जबरदस्त।
और क्या इसमें तर्जुमा करेंगे कफरू भी इसका? आए थे। कफरू भी है आगे, वेरी गुड। कफरू जो जी है ये क्या लग रहा है आपको, कौन सा सीगा लग रहा है? पूरा सीगा बताइएगा आप। जी, जमा मुजक्कर गायब और फिर माजी मालूम। फेल माजी मालूम, क्या ट्रांसलेशन करेंगे इसका आप? हाँ, इसमें ट्रांसलेशन तो कफरा का मतलब होता है कुफर करना ना। जी तो हाँ, तो कफरू का क्या ट्रांसलेशन कुफर करेंगे आप? करने वाले। आपने कहा नहीं, आपने कहा जमा मुजक्कर गायब है ये। जी, जिन्होंने कुफर किया। हाँ, कुफर किया उन सब लोगों ने, जी, उन कुफर सब किया मर्दों उनसे। ने। कुफर जी किया जी, उन सब मर्दों ने। मर्दों ने, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो है, मेल का सीगा है, इस वजह से मुजक्कर का सीगा है, इस वजह से हम जो है वो मर्दों का तर्जुमा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी खैर। और कोई किसी को कोई वर्ड याद पड़ रहा है? ठीक है, थीम तो समझ गए अब आप लोग। तो इसको अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें। चलते फिरते आपके दिमाग में कुरान की कोई भी आयत आ रही है ना, उसमें इस तरह से उस पर गौर करें कि इसमें कोई माजी है क्या, इसमें कोई मुजारे है। अगर मिल जाता है तो फिर उसको और आप उस पे उसको एनालाइज करें कि ये सीगा कौन सा है। अगर आप कहते हैं कि जो है ये वाहिद मुजक्कर गायब है, तो फिर आप देखेंगे जो गिरदान आपने पढ़ी थी उसमें भी वाहिद मुजक्कर गायब इसी तरह का था। अगर आपके जहन में आ रहा है कि ये जमा मुअन्नस हाजिर है, तो आप देखें कि जो आपने गिरदान पढ़ी थी क्या उसमें भी जमा मुअन्नस हाजिर में कोई ऐसी अलामत मौजूद थी जो इसमें भी मौजूद है। तो दोनों को कंपेयर करें। कंपैरिजन के नतीजे में आपको हो सकता है कि आप यकीनी तौर पे कहें कि हाँ यही है। हो सकता है कि आपको कोई डाउट हो। अगर डाउट हो तो किताब को कंसल्ट कर लें। ठीक है, किताब को देख लें, उससे आप क्लियर हो जाएंगे। डाउट नहीं है तो आपने अपने जहन के अंदर या किसी कागज़ के ऊपर या किसी मोबाइल की किसी स्क्रीन पे आपने उसको नोट कर लिया। जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जमा हो तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये अब हमारी मुस्तकिल प्रैक्टिस रहेगी इंशाल्लाह। यानी इस असाइनमेंट को तो आप मुस्तकिल अपने तौर पे रख लीजिए कि आपने इस तरह से कुरान के वर्ड्स लेके आने हैं। ठीक है, और कोई सवाल ठीक है। किसी के जहन में? चलें जी, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ। बोलो।